Morning student, today we start our first chapter of history portion, where, when and how, कब, कैसे, कहाँ. Okay children, this is our first chapter. Open at page 1, hold your pencil in your hand. Okay, let's start reading the first para. Extent. What is our first topic is? Extent. Now see what is given here in this para. The medieval period in India began from 8th century and continue till the 18th century. Medieval period. Medieval period. The British divided India into three periods. What they are, children? As you all know, ancient, medieval and modern. So we are talking about medieval period. Okay, up to which year it extended? 8th century to 18th century. Medieval period 8th to 18th century. Okay, medieval period divided, that means it extends from 8th to 18th century. Clear? Now see, during this phase of Indian history, numerous changes took place in the Indian subcontinent. Yes, numerous changes continuously occur now itself also in our India. Yes or no? Development occur day by day. Yes or no? Many inventions are created. नई नई चीज़ें आती रहती है, कभी भी कोई भी चीज़ें रुकती नहीं है. Clear? So at that time also, and in the past also, many different and many developments occur in this period also. Clear? Since medieval period spread across many centuries, it was divided into two phases, the early medieval period and the late medieval period. That means medieval period divided into two phases. Okay, early medieval period and late medieval period. पहले का medieval period का part and फिर उसके बाद का part. Clear? It was divided into two phases, the early medieval period and the late medieval period. Early, that means medieval period को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. Early पहले के साल and late, that means after आखिरी के साल. Clear? The early medieval period lasted till the 13th century. 13th century तक रहा. Early medieval period 8 to 13th century तक रहा. Early medieval period 8th to 13th century. It extends 8th to 18th, 13th century. Sorry. Okay. Then late medieval period 13th to 18th century. 13th to 18th century, children. Okay. See. Okay. Now understood? Medieval period extend up from 8th to 18th century. Okay, and it has two phases. What they are? Early medieval period and late medieval period. Early medieval period divided into that means it extend up to 8th to 13th century, and late medieval period it extend up to 13th to 18th century. Clear, children? The early medieval period lasted till the 13th century. See the para, children. Keep your finger there. Century, and cover history of the Palas, Pratiharas, Cholas and Rajput. मतलब पहले के कुछ सालों में कौन से राजाओं के बारे में दिया अंडरलाइनिंग? Palas, Pratiharas, Cholas and Rajput. These are the rulers who ruled in this period 8th to 13th century. Clear, children? The late medieval period. Now we are talking about late medieval period. Medieval phase begin from 13th century and last till the 18th century. 13th से 18th century तक था late medieval period. Clear? The late medieval period, the late medieval phase covered history from Delhi Sultanate and continued till the decline of Mughals.
क्लियर। अब इस पीरियड में कौन से राजा आए थे? दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे, दे आर इन दिस पीरियड, बिटवीन दिस पीरियड एंड द मुगल्स ऑल्सो। मुगल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, दिल्ली सल्तनत के बारे में इस चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे, क्लियर। एंड मुगल्स ऑल्सो, मुगल्स के बारे में भी। सो इन दिस बुक वी आर, हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं? मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस मेडिवल पीरियड डिवाइडेड इनटू 2 phases, early and the late medieval period. And the first early medieval period divided into 8th to 13th century, and the late medieval period divided into 13th to 18th century. Here Palas, Pratiharas, Cholas and Rajput rulers are rule in between this period, and here in this period Delhi Sultanate and the decline of the Mughal तक के पूरा दिया हुआ है in between this period. Understood this para children clearly? Okay. Now turn the page. Different names for India. Yes. Another topic is different names for. Now, different names for India. Let's start the first para. Okay. Listen carefully, children. What is given here in this para? You can understood. Listen carefully. Have patience. Okay. Now see the first para. On 18th September 1949, that means before independence. Okay. On 18th September that means after independence. 18th September 1949, the Constituent Assembly laid down Article 1. ओके, आर्टिकल 1 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आर्टिकल 1 के हिसाब से, यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो होता है उसके हिसाब से वी ऑल गेट इक्वल राइट्स. यस, ओके. हियर ऑन दैट बुक आर्टिकल 1 के हिसाब से सी आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेटेड इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया जिसको भारत रिकमेंड किया गया है, ओके, shall be a union of state. Union means a group, है ना, union of state. So many states are there in our India. Yes, okay. It divided into states. Our India divided into states or not, and union territories also. Yes, okay. So constitution that stated India, that is Bharat, India को भारत कहा गया, shall be union of states. This implies that the Constitution of India equates India to mean Bharat. That means India को क्या नाम रिकमेंड किया गया चिल्ड्रन? भारत. Clear this point? This para मैंने क्या बताया आपको? After independence 1949, Constitution Article 1 के हिसाब से, okay, India known as भारत, okay, and shall be a union of state, है ना, कि उसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी द पैरा. इट इज बिलीव दैट, व्हाट इज बिलीव? इट इज बिलीव दैट नेम भारत वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ लेजेंडरी किंग भारत. ओके, अच्छा, ये भारत नाम किसके नाम से दिया गया है? एक किंग जिसका नाम था भारत. ठीक है. Who was the son of King Dushyant and Shakuntala? अब ये भारत किसका सन था? दुष्यंत और शकुंतला का सन था, मतलब बेटा था. क्लियर. And was the ancestor of Kauravas and Pandavas. ओके, कौरव्स और पांडव्स के ये एंसेस्टर थे. What do you mean by ancestor children? Ancestor means पूर्वज. ठीक है, जो हमारे पूर्वज है ना, हमारे दादा दादी है ना, लाइक दैट, है ना, एंसेस्टर पूर्वज, उनके दादा दादी, लाइक दैट, है ना. तो ये सारे कौन हुए चिल्ड्रन? हमारे एंसेस्टर हुए. सो अगेन आई रिपीट दिस. इट इज बिलीव दैट भारत नाम किससे दिया गया था? भारत था. एंड हु इज भारत? द लेजेंडरी किंग हु इज एंड भारत's फादर मदर नेम इज दुष्यंत एंड शकुंतला. ओके, who was the ancestor of Kaurava and Pandavas. Okay, clear children? किसके नाम से दिया गया था? एंड ये कौन थे? एंसेस्टर थे किसके? कौरव्स एंड पांडवस के. नाउ सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन. India is also referred
रिफर्ड टू एज हिंदुस्तान, इंडिया को हिंदुस्तान भी रिफर्ड किया गया। क्लियर? हाउएवर दिस इज मोस्टली डन इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। द नेम हिंदुस्तान वॉज डिराइव फ्रॉम पर्सियन टर्म हिंदू। हिंदुस्तान किससे लिया गया है? पर्सियन वर्ड हिंदू। हिंदुस्तान किससे लिया गया है? पर्सियन वर्ड हिंदुस्तान, पर्सियन वर्ड, ओके, हिंदू। अगेन see the para. The name Hindustan was derived from a Persian term Hindu and the word Hindu is a Persian for Sindhu. अब ये हिंदू क्या है? इस हिंदू का पर्सियन क्या है? पर्सियन सिंधु, सिंधु। अंडरस्टूड? हिंदुस्तान का पर्सियन वर्ड है हिंदू एंड हिंदू का पर्सियन वर्ड है सिंधु। क्लियर? द नेम ऑफ इंडस रिवर इन संस्कृत, अब ये सिंधु क्या है? द नेम ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर, इंडस रिवर का नाम है इन संस्कृत, इन संस्कृत। क्लियर? Thus, Hindustan referred to the land that they lay beyond the Indus. अब हिंदुस्तान ऐसे ज़मीन को कहा गया है जहाँ से जो इंडस रिवर बहती है ना, उसके दूर का एरिया को हिंदुस्तान कहा गया है। चिल्ड्रन, क्लियर? ये पैरा में मैंने क्या बताया आपको? हिंदुस्तान वर्ड लिया गया है, ओके, and Hindustan word is the Persian name of Hindu and Hindu is the Persian name of Sindhu, and Sindhu is the name of Indus river and in which language? Is in Sanskrit language. Clear? और क्या बताया मैंने लास्ट लाइन में आपको? Thus Hindustan referred to the land that they beyond the इंडस, इंडस रिवर के बियॉन्ड मतलब दूर पर जो ज़मीन है उसको हिंदुस्तान भी बोला जाता था पहले। ओके, पहले इंडस रिवर के दूर जो एक्सटेंड है, दूरी पर है, ओके, जो लैंड दिखता है उसको हिंदुस्तान बोला जाता था। क्लियर? एट दैट टाइम सो मेनी नेम्स आर गिवन हियर इन दिस बुक, है ना। पहले के लोग हिंदुस्तान को पार्ट ऑफ टेरिटरी भी बोलते थे। जैसे मैंने कोई पार्ट ऑफ टेरिटरी जीत ली, ओके, लैंड जीत लिया लड़ झगड़ के सबसे, है ना, तो उस पार्ट ऑफ लैंड को भी मैं हिंदुस्तान बोलूँगी। क्लियर? तो इतने सारे लोग क्या क्या कहते थे हिंदुस्तान के बारे में, लेट्स सी इन नेक्स्ट पैरा। क्लियर? सी सम वन बॉक्स इज गिवन, स्किल कॉर्नर। लेट्स रीड आउट दिस बॉक्स चिल्ड्रन। इंडिया हैज़ बीन रिफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम। इंडिया को रिफर्ड किया गया, डिफरेंट नेम, अलग अलग नाम से रिफर्ड किया गया। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पुराना रिफर टू इंडिया एज जम्बुद्वीपा। ओके, पहले बुद्धिस्ट और पुरानास के लोग जो इंडिया में रहते थे, है ना, दे रिकमेंड इंडिया एज जम्बुद्वीपा। ओके, इंडिया को जम्बुद्वीपा कहा जाता था। ओके, एंड अनदर थिंग व्हाट इज गिवन, फाइंड आउट 2 अदर नेम दैट वेर यूज्ड फॉर इंडिया। यू कैन फाइंड आउट इन योर बुक इन दीज अबाउट पैरास ऑल्सो। हाँ, अदर 2 नेम आप खुद ही पता लगा सकते हो कि इंडिया के अदर 2 नेम्स क्या है। राइट डाउन विथ पेंसिल। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। Over the course of different period, the meaning of name Hindustan has changed drastically, है ना। नेम ऑफ हिंदुस्तान चेंजेस ड्रेस्टिकली, मतलब चेंज होते जाता था। मतलब मीनिंग क्या है हिंदुस्तान का, कभी इस पार्ट को हिंदुस्तान कह दिया, कभी वो चीज़ को हिंदुस्तान कह दिया। लेट्स सी। ओके, सी ओवर द कोर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स द मीनिंग ऑफ the name Hindustan has changed drastically in the 13th century. Let's see in the 13th century what will happen, what was happen. Okay, in the 13th century, Persian historian Minhaj-i-Siraj, underline it, used the term Hindustan to describe Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna. जो मिनाज-i-सिराज थे 13th सेंचुरी के,
ओके, हिस्टोरियन जो थे, लिखा करते थे हिस्ट्री के बारे में, उन्होंने हिंदुस्तान किसको कहा? लेट्स अंडरलाइन, पंजाब को, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड होती है ना, उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा। ओके, क्या बताया मैंने? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन रिवर गंगा एंड यमुना। ओके, सो दैट पार्ट मिनाज-ए सिराज ने उस पार्ट को हिंदुस्तान कहा। क्लियर हुआ चिल्ड्रन ये पैरा? नाउ सी द नेक्स्ट वन। द यूज ऑफ टर्म हिंदुस्तान was more of a reference to the extent of sultanate that changed with the change of political boundaries. That political boundaries बनती चली गई। political boundaries क्या होती है ना? अभी political boundary अपने इंडिया का political map आपने देखा होगा, boundaries दी हुई रहती है ना। तो जैसे जैसे नए नए सुल्तान आए, political boundaries changes होते गई, उन्होंने कुछ ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया, जीत लिया, है ना, तो बाउंड्रीज चेंज हो गई, है ना, हार गए तो बाउंड्रीज चेंज हो गई, लाइक दैट। ओके, द मुगल्स हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग 14th century, मुगल्स, है ना, अकबर्स एंड ऑल, बाबर वगैरह, है ना, मुगल्स हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग 14th century use term Hindustan to refer to their territory in India. Just I told you before sometimes, है ना, मैंने क्या बताया आपको कि जो मुगल्स थे come to India on when in 14th century, जब 14th century में हिंदुस्तान में मुगल्स आए तो उन्होंने अपनी टेरिटरी मतलब जीते वाले एरिया का नाम क्या दे दिया? हिंदुस्तान दे दिया। क्लियर हुआ चिल्ड्रन ये पॉइंट? नाउ सी द नेक्स्ट वन। The name India has also been derived from Sindhu. The name India has also been derived from Sindhu when Persian conquered the Indian subcontinent and Greece in the 5th century BCE. Sindhu became Hindus and slowly involved Hindus to make the land of Hindus. By the 17th century, Indus transitioned into India. What is given here in this para? Again I read slowly and explain. The name India also has been derived from Sindhu. हिंदुस्तान जो इंडिया का नेम है वो किससे लिया गया है? कहा गया है सिंधु से लिया गया है ना? किससे लिया गया है? सिंधु से लिया गया है। When the Persian conquered, अब पर्सियन लोगों ने जब कॉन्कर्ड किया, कॉन्कर्ड मीन्स क्या होता है? कब्जा किया। ओके, When the Persian conquered the Indian subcontinent, उन्होंने इंडिया के कुछ कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया, कॉन्कर्ड किया। ओके, एंड ग्रीस पर भी कब्जा किया। कब? इन द 5th century BC, 5th century में, इन 5th century, ओके, BC, सिंधु बिकम हिंदूज, तो सिंधु नाम कन्वर्ट होके क्या बन गया? हिंदूज बन गया। एंड स्लोली इवॉल्व टू इंडोज, फिर हिंदू से, ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया? इसमें किस वर्ड का इन्वॉल्वेशन था? इंडोज का। ओके, टू मार्क द लैंड ऑफ हिंदू, क्योंकि उस समय हिंदूज थे, है ना, तो लैंड को मार्क करते थे वो, है ना, ये कहा जाता था। बाय द 17th century, इंडोज ट्रांजिशन टू इंडिया, फिर बाद में इंडोज से इंडिया पर आ गया। ओके, पहले सिंधु हुआ, ठीक है, फिर हिंदूज हुआ, है ना, फिर इंडोज हुआ। ओके, देन कन्वर्टेड इनटू इंडिया। अगेन हियर इन दिस पैरा आई टोल्ड यू, पहले क्या हुआ? पहले सिंधु हुआ, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, सिंधु हुआ, देन इट बिकम हिंदूज, फिर हिंदूज में कन्वर्ट हुआ इंडिया का नेम, एंड स्लोली इन्वॉल्व इंडोज, जैसे ही इन्वॉल्व टू इंडोज टू मार्क द लैंड ऑफ हिंदूज। बाय द 17th century, इंडोज ट्रांजिशन इनटू इंडिया, तो इंडोज फिर इंडोज में कन्वर्ट हुआ, फिर इंडोज से आया इंडिया में। देखा जाए तो इंडस रिवर के नाम से हमारा इंडिया का नाम को रखा गया है। क्लियर चिल्ड्रन? सी द नेक्स्ट पैरा। डिफरेंट नेम केम अप इन द डिफरेंट पीरियड, अलग अलग नाम अलग अलग पीरियड में आए ऑफ इंडियन हिस्ट्री। However, one unique thing about the name that has been used to describe our country is the fact that they have all been derived from the river Indus.
ये सारे नाम बोला जाता है कि डिफरेंट नेम अलग अलग सेंचुरी में आए, लेकिन आवर कंट्री इज द फैक्ट दैट दे हैव ऑल बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। किससे निकाले गए हैं? इंडस से निकाले गए हैं, जो एक रिवर का नाम है। विच रन्स थ्रू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बहती है, लद्दाख इन इंडिया, लद्दाख की इंडिया से गुजरती है, एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत से गुजरती है। ठीक है, ये तीनों जगहों से ये बहती है इंडस। ओके, नाउ सी द बॉक्स चिल्ड्रन। द चाइनीज रिफर टू इंडिया एज तियांजू। चाइनी इंडिया को, चाइना जो चाइनीज है, ओके, चाइना में जो रहते हैं, उन्होंने इंडिया को किस वर्ड से रिकमेंड किया? तियांजू। दे ऑल्सो रिफर टू इंडिया एज वुटियांजू। ओके, अनदर नेम इज वुटियांजू दैट ट्रांसलेटेड टू 5 इंडियाज, है ना, 5 इंडियाज को ट्रांसलेट करते थे, है ना। कैसे? द चाइनीज परहैप्स रिफर टू इंडिया एज 5 इंडिया एज दे नो ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन। 5 इंडिया आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैम 5 इंडिया क्या? सेंट्रल मतलब बीच का पार्ट, ईस्टर्न दिस वे, ओके, वेस्टर्न दिस वे, नॉर्दर्न दिस वे एंड द साउथ। 4 डायरेक्शन आर देयर एंड सेंट्रल ऑल्सो एडेड। ओके, तो ये तीनों, ये पांचों एरिया को मिलाकर चाइनीज लोगों ने इंडिया का नाम रखा था वुटियांजू। ओके, क्लियर दिस चिल्ड्रन? नाउ लास्ट पैरा ऑफ दिस टॉपिक। इन द प्रीवियस क्लास यू मोस्टली स्टडी अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। आप लोगों ने क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, पुरानी हिस्ट्री। ओके, इन दिस क्लास वी विल फोकस ऑन हिस्ट्री ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विच वॉज बिटवीन 700 CE टू 1800 CE। ओके, जो 700 से 1800 CE तक चली है, जो हम मेडिवल पीरियड के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट कुछ पैरा में मैंने क्या बताया चिल्ड्रन आपको? क्या बताया आपको कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम मेडिवल पीरियड पढ़ने वाले हैं। मेडिवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली एंड द लेट पीरियड। उसके बाद हमने हिंदुस्तान के अलग अलग मीनिंग्स पढ़े, अलग अलग ईयर में अलग अलग लोगों ने हिंदुस्तान को क्या क्या नेम से, मतलब किस पार्ट को हिंदुस्तान का नाम दिया गया, ये भी पढ़े हम लोगों ने इस पैरा में, है ना। मिनाजा सिराज ने पार्ट ऑफ लैंड को कहा, है ना, किसी ने सिंधुस कहा, फिर इंडोस हुआ, फिर इंडोस से फिर इंडिया हुआ, और फिर देखा जाए तो इंडस रिवर के नाम से हमारा इंडिया नाम रखा गया। ओके, फिर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये 3 मेन पार्ट से गुजरती है, 3 मेन जगहों से गुजरती है, इसलिए इंडस रिवर के नाम से हमारे इंडिया को रिकमेंड किया गया। एंड इन द नेक्स्ट पैरा वी विल टॉकिंग अबाउट मेडिवल पीरियड, है ना, मेडिवल पीरियड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना। बाय बाय, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर।